Assalamu alaikum second year art student. Today we are going to discuss type of sentences. Yesterday we have discussed subject, object and complement. I hope so you have understood this topic. Subject is a doer of an action, object is a receiver of an action, or complement provides extra information. Today we will discuss the type of sentences. This topic will help you in direct indirect speech. Okay, yesterday I have enjoyed teaching you because you have shared your point of view that English is a difficult or an easy subject. So you people have said that English is difficult one. Okay, I'm not agree with you because English is very easy. Even English grammar is just like a game. So when I will teach you direct and indirect, so you will come to know that English is just like a game. Okay, now we are going to start type of sentences. So in English we have four type of sentences: declarative, imperative, exclamatory and interrogative. So what is a declarative sentence? Student, declarative sentence is a simple statement or simple sentence. You can see in the example. I want noodle for the dinner. You can see this sentence. I want noodles for dinner. After dinner, you can see full stop. So always remember that declarative sentence always ends with full stop. And this is just a simple statement. Now the second sentence, this math problem is very easy. This is also the simple statement, or we can say this is a simple sentence. After easy you can see full stop. So declarative sentence always ends with the full stop. Last sentence is we are learning solar system. So this is also the simple statement. तो मैं आपको बताती चलूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. सिर्फ जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट होते हैं. इसमें आप नोट नहीं देख सकते, इसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते. ये हमेशा किससे ख़त्म होते हैं, फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं और ये एक सिंपल से स्टेटमेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू कॉलेज. आई गो टू कॉलेज, full stop. After college I put full stop because this is a declarative sentence और ये क्या है, एक simple statement है. Now come to the second sentence. Second sentence is an imperative sentence. In imperative sentence, speaker makes command or request and order. For example, please be quiet. Be quiet means speaker is ordering to someone to be quiet. The baby is sleeping. After sleeping, you can see full stop. So imperative sentence always ends with full stop. But in imperative sentence, you cannot see subject. For example, you can see in this example, please be quiet. Who should be quiet? We don't know. हमें किसको क्वाइट रहने का बोल रही हूँ मुझे नहीं पता. इसमें डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है. अगर मैं ये कहूँगी यू शुड बी क्वाइट तो सही होगा. मैं तो डायरेक्टली कह रही हूँ बी क्वाइट. देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सो ये वाला कौन सा सेंटेंस है? ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस. नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस. प्लीज क्लोज द डोर. हु शुड क्लोज द डोर? वी डोंट नो. मॉस्किटो विल कम इन. कम्स इन के बाद आप देख सकते हैं देयर इज अ फुल स्टॉप और देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. तो जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ना मिले तो आप इसको कौन सा सेंटेंस समझेंगे? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. और आप इस सेंटेंस में देख सकती हैं कि स्पीकर या तो कमांड कर रहा है या तो रिक्वेस्ट कर रहा है. प्लीज़ देख सकते हैं, जब हम किसी को प्लीज़ कहते हैं तो वी आर रिक्वेस्टिंग टू समबडी. लास्ट सेंटेंस, काइंडली पास द बुक. मैं किसी को कह रही हूँ कि मुझे बुक दो. अब इसके बुक के बाद आप फुल स्टॉप देख सकते हो, लेकिन मैं किसको कह रही हूँ वी डोंट नो. मैं तो डायरेक्टली कह रही हूँ मुझे बुक दो, मुझे बुक पास करो, लेकिन मैं किसको कह रही हूँ? यू पीपल डोंट नो. तो अगर ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना हो वो सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. यही इसका ट्रिक है जानने का. अगर आपको सब्जेक्ट ना मिले तो आप समझ जाना कि ये सेंटेंस कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है. नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्पीकर एक्सप्रेसेस इट्स फीलिंग एंड इमोशन.
कैसे फीलिंग और इमोशन हम एक्सप्रेस करेंगे। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वाव, हुर्रा, अल्लाह। ये एक्सप्रेशन के सेंटेंसेस से हम अपने इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं, वाव लुक एट द सीनरी। ओके, आफ्टर वाव यू कैन सी एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क तो आएगा ही, इससे आप समझ जाओगे दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ लुक एट द सीनरी। अब देखो इसमें एक स्पीकर क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि सीनरी कितनी अच्छी है। सेकेंड सेंटेंस देते हैं हुर्रा। हुर्रा का मतलब होता है जब आप खुश होते हैं, सो यू से हुर्रा। हुर्रा हॉलीडे हैव स्टार्टेड। इसमें भी आपको क्या, आपको फील हो रहा है कि स्पीकर बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक और निशानी ये, आफ्टर हुर्रा यू कैन सी एक्सक्लेमेशन मार्क। लास्ट सेंटेंस अल्लाह। जब कोई दुखी होता है या दुख भरी बात होती है तो स्पीकर क्या कहता है, अल्लाह। अल्लाह ही हैज़ गॉन, वो चला गया, मे बी ही हैज़ डाइड। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, वाओ, हुर्रा, अल्लाह, या व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, इस टाइप के सेंटेंस होंगे। The last sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence is a very easy sentence. It always ends with a question mark. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं हर सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेंटेंस, हाउ मेनी पेजेस ऑफ होमवर्क। मेरा खत्म होने वाला है। अल्लाह, यहाँ वो खबर हम बोल ही रही है तो भी तो बोला ही रही है। Assalamu alaikum second year our student. Today we are going to discuss type of sentences. Yesterday we have discussed subject, object and complement. I hope so you have understood this topic. So subject is a doer of an action, object is a receiver of an action, and complement always provide extra information. Today we will discuss type of sentences. This topic will help you in direct or direct and indirect speech. Okay, yesterday you have shared your point of view regarding English. I have asked the question that English is a difficult or easy subject. So you people have said English is a very difficult subject. So I am not agree with you because English is very easy. Even grammar is just like a game. ग्रामर में जस्ट आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि आपको कैसे करना है। शॉर्टकट, हमेशा ग्रामर में शॉर्टकट देखें। तो आज हम यही देखेंगे कि शॉर्टकट क्या है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो इन इंग्लिश we have four type of sentences. First one is declarative, second is imperative, third is exclamatory, and the fourth is interrogative. So declarative sentence, this is a bookish definition. I'm going to tell you very easy definition. A declarative sentence always ends with full stop, and this is just a simple sentence. You can see in the example, I want noodle for dinner. सिंपल सा स्टेटमेंट है कि मुझे नूडल्स चाहिए डिनर में। ना आप इसमें नोट देख सकते हो, ना इसमें क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हो, सिर्फ फुल स्टॉप है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, दिस मैथ प्रॉब्लम इज वेरी इजी। Okay, this is also the simple statement, or this sentence is also ends with full stop. The last sentence is we are learning solar system. इस सेंटेंस में भी आप एंड में देख सकते हो कि फुल स्टॉप है, एंड दिस इज ऑल्सो जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट। तो आप यही याद रखना कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसा स्टेटमेंट होता है। जैसे अगर आप ये कहोगे आई एम गोइंग टू कॉलेज, दिस इज ऑल्सो द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई एम हैविंग अ फन, दिस इज ऑल्सो द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Now come to the second type, imperative sentence. In imperative sentence, the speaker always makes command, order, request. You can see in the example, please. हम please कब बोलते हैं, जब हम request कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखना, in imperative sentence you will not see subject.
Yesterday we have discussed subject. Subject is a doer of an action. लेकिन imperative sentence में you will not see any subject. आप यहाँ पे देख सकते हो please be quiet. Who should be quiet? We don't know. आपको नहीं पता मैं किसको कह रही हूँ be quiet. The baby is sleeping. तो imperative sentence की सबसे बड़ी निशानी क्या है? You will not see any subject in the sentence. और ये भी sentence कैसे खत्म होगा? Full stop पे खत्म होगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं प्लीज क्लोज द डोर. ओके आप लोग को नहीं पता कौन दरवाजा बंद करेगा. ओके मैं किसको कह रही हूँ कि दरवाजा बंद करें, आपको नहीं पता, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है. अगर आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नजर ना आए तो वो कौन से सेंटेंस होंगे? इम्पेरेटिव होंगे. प्लीज क्लोज द डोर, मॉस्किटो विल कम इन. comes in, you can see full stop. Okay, so this is an imperative sentence. The last sentence is kindly pass the book. In this sentence you cannot see any subject. Okay, जब आपको subject नजर ना आए तो आप समझ जाना this is an imperative sentence. Now come to the third type, exclamatory sentences. Okay, always remember that in exclamatory sentence speaker always expresses feeling and emotion. जब आप कहें ना व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, तो आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो डे के बारे में, इसलिए आप कह रहे हो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज. ओके, तो ये कौन सा वाला सेंटेंस है? व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज. दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्योंकि आप इसमें अपनी फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हो. नाउ कम टू द एग्जांपल्स. वाओ, वाओ लुक एट द सीनरी. वाओ, वाओ आप देख लो, जब आप एक्साइटेड होते हो तब आप वाओ कहते हो. आफ्टर वाओ यू कैन सी एक्सक्लेमेशन मार्क. तो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप क्या देखेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क तो लाजमी ही होगा. तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ओके, नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस, हुड़ा. आफ्टर हुड़ा यू कैन सी एक्सक्लेमेशन मार्क, हॉलीडे हैव स्टार्टेड. यहाँ पे भी स्पीकर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो रहा है कि हुड़ा. हुड़ा किसको एक्सप्रेस करता है? जब आप खुश होते हैं. नाउ द लास्ट सेंटेंस, अलास ही हैज गॉन. अलास हम कब कहते हैं? जब आप दुखी होते हैं. ओके, आफ्टर अलास यू कैन सी एक्सक्लेमेशन मार्क, ही हैज गॉन. तो ये कौन सा वाला सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. इन इंटरोगेटिव सेंटेंस स्पीकर ऑलवेज आस्क्स क्वेश्चन. और इसकी तो बहुत इजी सी आपको मैं ट्रिक बताऊंगी कि ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क पे ही खत्म होता है. हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको इसके एंड में दिखेगा. हाउ मेनी पेजेस ऑफ होमवर्क यू गॉट? आफ्टर गॉट यू कैन सी क्वेश्चन मार्क. व्हाट आर यू डूइंग? आफ्टर डूइंग यू कैन सी क्वेश्चन मार्क. एंड द लास्ट सेंटेंस गर्ल्स, इसमें वर्ड नहीं लिखा हुआ, वेयर लिखा हुआ है. वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशन? दिस इज नॉट वर्ड, दिस इज वेयर. वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशन, ये थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक हो गई है. सो आफ्टर वेकेशन यू कैन सी क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. मैं फिर से आपको क्विक से रिव्यू देती हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस में. फर्स्ट वन वी हैव स्टडीड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? जैसा सिंपल स्टेटमेंट है, जब भी आप सिंपल सिंपल सेंटेंस आप लिखेंगे तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा. जैसे आई एम ईटिंग माई लंच, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव है. ओके, आर यू डूइंग समथिंग? आर यू डूइंग समथिंग. इसके बाद क्वेश्चन मार्क, और किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव है. अब हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है. अगर मैं आपको कहूँगी प्लीज कीप क्वाइट, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खामोश हो जाएं. और आप देख सकते हैं मैंने कोई सब्जेक्ट यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली ये कहा प्लीज कीप क्वाइट. मैंने ये नहीं कहा यू कीप क्वाइट, मैंने जस्ट कहा कीप क्वाइट. तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? वाओ वी हैव अ ग्रेट फन ओवर देयर. सो वाओ, मैं क्या कर रही हूँ? अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही हूँ. ओके, तो ये था आपका टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नाउ वी विल वॉच वीडियो ताकि आपको और There are four types of sentences.
declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, declarative sentence. This sentence is a statement that tells us something. It ends with a full stop. For example, I went to the shop today. My name is Jasmine. Imperative sentence. This type of sentence tells someone to do something. It can be a command or a request. The sentence ends with a full stop. For example, please complete your homework for tomorrow. Go to school now. Interrogative sentence. This type of sentence asks a question, and it ends with a question mark. For example, where do you live? What time did you go to the shop? Exclamatory sentence. With an exclamation mark. For example, command or request. There are 4 types of sentences. Declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence. Declarative sentence. This sentence is a statement that tells us something. It ends with a full stop. For example, I went to the shop today. My name is Jasmine. Imperative sentence. This type of sentence tells someone to do something. It can be a command or a request. The sentence ends with a full stop. For example, please complete your homework for tomorrow. Go to school now. Interrogative sentence. This type of sentence asks a question, and it ends with a question mark. For example, where do you live? What time did you go to the shop? Exclamatory sentence. This is a type of sentence that shows strong feeling. It ends with an exclamation mark. For example, I feel so sad. Today is the best day ever. Okay guys, now I will solve some exercise in front of you. Okay, you can see this file. I'm going to zoom this file so you can see. Okay, now the first sentence, who was the first female astronaut? You can see after astronaut question mark. So which type of sentence is this? This is a interrogative sentence.
क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद a question mark. Okay, now the second sentence, buckle your seat belt even for the short trip. ओके, बकल योर सीट बेल्ट. आपको यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, किसको कह रहे हैं बकल योर सीट बेल्ट? तो वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता? वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे होते हैं? वी गिव ऑर्डर, वी मेक रिक्वेस्ट, वी कमांड somebody. Okay, now come to the third sentence. Please put the stamp envelope in the box. So you can see please, and after please there is no subject. वो किसको कह रहे हैं स्टैम्प एनवेलप रखने का बॉक्स में? हमें नहीं पता. जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. नाउ कम टू द फोर्थ वन. यू मस्ट बी जॉकिंग. You must be joking. After joking you can see exclamation mark. So this is a exclamatory sentence. Now come to the fifth one. What a thrill that ride was. It means that speaker को ride लेने में बड़ा मजा आया, क्योंकि वो कह रहा है what a thrill that ride was. अब was के बाद आप देख सकते हो exclamation mark. So this is a exclamatory sentence. Okay, now come to the sixth sentence. In 1776 there were 53 newspaper in London. अब देखो ना, इसमें क्वेश्चन मार्क है ना, कोई ऑर्डर दे रहा है ना, कोई फीलिंग है. दिस इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट. जब सिंपल सेंटेंस होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, सेवेंथ सेंटेंस. हु वर द फर्स्ट पीपल टू यूज पेपर मनी? आफ्टर मनी you can see a question mark. This is an interrogative sentence. Insert the diskette in this slot. अब इंसर्ट करने का कह रहे हैं, लेकिन किसको कह रहे हैं हमें नहीं पता. सो ये कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है. नाइन्थ सेंटेंस को देखते हैं. इंसेक्ट आउट नंबर पीपल बाय मिलियन टू वन. सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये. Okay, last sentence. What an amazing story that is. After is you can see exclamation mark. So ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दूंगी. आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही मुझे वो सॉल्व करके देंगे, लेकिन वो आप लोग स्क्रीन सिर्फ रिजल्ट की शो करेंगे. आप लोग अपने एमसीक्यूज की स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे. स्क्रीनशॉट सिर्फ आप रिजल्ट का लेंगे. ओके, मैं कोड और आपको लिंक भेजूंगी. आप लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना कोड एंटर करेंगे तो आपको आ जाएगा. आप जस्ट अपना कोई सॉल्व करना और उसका रिजल्ट शेयर करना. थैंक यू फॉर दिस. अल्लाह हाफिज. और अच्छे से क्लियर हो जाए. दिस इज अ वीडियो